Good morning, friends. Welcome to my 17th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding average. I have told that average is a single figure which represent a entire set of data. Then we have discussed average may be of two types. One is mathematical average, another is positional average. The mathematical average is known as mean. And in mathematical average, we have discussed mean is of three types: arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. We have already discussed. Then we concentrate our discussion on positional average. In positional average is of two types. One is median family, another is mode. So in case of median family, it includes median, then quartile, then decile, then percentile. So we have already discussed out of median family the discussion on median. Today we will concentrate our discussion on another positional average that is known as quartiles. So we will discuss what is a quartile. Okay, quartile क्या है, quartile के बारे में डिटेल्स में आज के क्लास में बात करेंगे. ठीक है. So before discussing the integrity of quartiles, let me first share my screen with you. Then we will discuss regarding quartile. Okay. 1 minute, please. Okay, friends. So we will discuss regarding quartile. Before discussing quartile, let me first tell you what is median. We have discussed median is a value which divides the entire series into two equal parts. We have discussed the concept of median. Median divides the entire series into two equal parts. Okay, we have already discussed median. Now today we'll discuss quartile. What is quartile? Quartile is something which divides the entire series into four equal parts after arranging it in ascending order or descending order. So first we will write down the definition of quartile, then we will go step by step. So first write down what is quartile. First point, quartile. Write down first point. Quartile divides the entire series into four equal parts. How many equal parts? Four equal parts. After arranging it in ascending order or descending order. But what is ascending order or descending order? Ascending order or descending order means either in increasing order और in decreasing order. छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में हमको पहले डाटा को सजाना है. मैं बताया था जितना पोजिशनल एवरेज होता है, मीन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो, मोड हो, सब में पहले डाटा को अरेंज करना पड़ता है. विदाउट अरेंजिंग द डाटा वी कैन नॉट फाइंड आउट द positional average. So we have to arrange the data either in ascending order or descending order. Then एक बार सीरीज को ascending और descending order में डिवाइड करने के बाद उसको जो वैल्यू चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं क्वार्टाइल. सो क्वार्टाइल इज समथिंग व्हिच डिवाइड्स द एंटायर सीरीज इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? फोर इक्वल पार्ट्स. तो क्वार्टाइल एक सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो अगर देखेंगे, अगर ये एक सीरीज है तो कितना क्वार्टाइल हो सकता है? सपोज दिस इज ए सीरीज ऑफ डाटा.
इसको 4 इक्वल पार्ट में, अच्छा ये कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में। हर एक पार्ट को दो दो भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर एक पार्ट और यहां पर एक पार्ट। बेटा देखा क्या, तो कितना क्वार्टाइल्स होने लगा है, 3 क्वार्टाइल्स आर देयर because we have to divide the series into how many equal parts, 4 equal parts. Now see, is it 4 equal parts? Yes, first part, second part, third part, fourth part. So how many quartiles are there? So there are 3 quartiles. This is known as q1. Q1 means quartile 1. This is known as q2, that is quartile 2. This is known as q3. Quartile divides the entire series into 4 equal parts. So every part में कितना परसेंट है, 25%, 25%, 25%, 25%। बेटा क्वार्टाइल का समझ में आ रहा है। सो देयर आर हाउ मेनी क्वार्टाइल्स, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। व्हाट आर द 3 क्वार्टाइल्स, q1, q2, q3। सो q1 इज नोन एज लोअर क्वार्टाइल। q1 को क्या बोला जाता है, q1 इज ऑल्सो नोन एज लोअर क्वार्टाइल। And what is Q3? Q3 is known as upper quartile. But what is Q2? Q2 is known as middle quartile. बेटा देखो Q2 एक ऐसा वैल्यू है जिसके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 25%, 25%, 50%, और राइट साइड में कितने हैं, 25 प्लस 25, 50%। मतलब Q2 डिवाइड्स द एंटायर सीरीज, ये Q2 डिवाइड्स द एंटायर सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इनटू 2 पार्ट्स। सो कौन सा चीज एक सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मैं अभी बताया था, मीडियन इज समथिंग व्हिच डिवाइड्स द एंटायर सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो Q2 जो है मीडियन वही है। सो Q2 वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू। am I clear? सो अभी हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू मीडियन। Q2 जो है मीडियन वही है। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो there are 3 quartiles. Quartile divides the entire series into 4 equal parts. There are 3 quartiles. What are the 3 quartiles? Q1, Q2, Q3. Q1 is known as lower quartile. कभी कभी इसको भी बोला जाता है fast quartile. And ये जो Q3 ये जो अपर क्वार्टाइल, इसको भी कभी कभी हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। और Q2 इज मिडिल क्वार्टाइल, इसको भी कभी कभी बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल। Q2 जो है मीडियन वही है। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज क्वार्टाइल, क्वार्टाइल कितने हैं, कितने तरह का क्वार्टाइल से, तो अभी देखेंगे। अभी ये क्वार्टाइल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब क्या है, क्वार्टाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो पहले समझेंगे। बेटा Q1 क्या है, देखो Q1 एक ऐसा फिगर है जिससे कम कितना परसेंट है, कम मतलब इस साइड में आएगा, कौन सा साइड में, ये वाला साइड में, जिससे कम 20% डाटा है, और जिससे ज्यादा कितना परसेंट है, अगर ये 25% है तो इससे ज्यादा कितना होगा, 25 प्लस 25 प्लस 25, 75%। तो Q1 एक ऐसा फिगर है जिससे बिलो 25% डाटा है और जिससे एबव 75% डाटा है। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी लिखेंगे व्हाट इज Q1, तो लिखेंगे 25% of the observations 25% of the observations have a value less than Q1। इसको दूसरे तरफ से लिख सकता हूं 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैव ए वैल्यू मोर देन Q1। तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैव ए वैल्यू
मोर देन Q1। बेटा सेकेंड वे में लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है, Q2 के केस में देखो, Q2 के बस केस में क्या है, 50% ऑफ द वैल्यू इज लेस देन Q2 एंड 50% ऑफ द वैल्यू इज मोर देन Q2। तो Q2 में लिखेंगे 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 50% of the observations have a value less than Q2, और मैं इसको लिख सकता हूं 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैव ए वैल्यू मोर देन Q2, तो इसको लिख सकते हैं 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैव ए वैल्यू मोर देन Q2। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? अच्छा, Q3 में देखो कितना परसेंट उससे कम है, उससे कम 75% है, उससे ज्यादा 25% है। तो कैसे 75%? ये Q3 है, तो इससे कम मतलब इससे पीछे, इससे पीछे कितने हैं, इससे पीछे हैं, ये पीछे है, ये पीछे, इससे पीछे कितने हैं, 25 प्लस 25 प्लस 25, 75। तो लिखेंगे इस तरह से 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस have a value less than Q3, और इसको उल्टा करके लिखेंगे कितना परसेंट उससे ज्यादा है, 25% उससे ज्यादा है, तो लिखेंगे 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन have a value more than Q3। बेटा Q1, Q2, Q3 का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? Q1, Q2, Q3 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक ऑब्जर्वेशन में कितना क्या है, क्वार्टाइल्स है। मैं बताया था क्वार्टाइल्स एक ऐसा चीज है जो एक सीरीज को डिवाइड करता है। कैसे, कितने में डिवाइड करता है? इट डिवाइड्स द एंटायर सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 equal parts। Hence we have discussed there are 3 quartiles। What are the 3 quartiles? There are 3 quartiles. One is known as Q1, another is known as Q2, another is known as Q3। Q1, Q2, Q3। Q1 को लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है, Q2 को अपर मिडिल क्वार्टाइल बोला जाता है, Q3 को अपर क्वार्टाइल बोला जाता है। Q2 जो है मीडियन वही है। समझ में आ रहा है क्या? तो Q1 से पीछे में 25% है, Q1 से आगे में 75% है, Q2 से पीछे में 50%, Q2 के आगे में 50%, Q3 से पीछे में 75%, Q3 से आगे में 25%। सो दिस इज नोन एज क्वार्टाइल्स। ये है क्वार्टाइल्स। अभी हम बात करेंगे हाउ टू कंप्यूट क्वार्टाइल्स इन केस ऑफ डिफरेंट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। कैसे डिफरेंट सीरीज में हम क्वार्टाइल निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? So today, now we will discuss how to compute quartile in case of different series. Write down computation of quartile in different series of data। बेटा how many types of series
are there? We have already discussed there are three type of series. What are the three type of series? Individual observation, discrete series, and continuous series. So we will discuss how quartile is computed in case of individual observation. Next we will discuss how quartile is computed in case of discrete series. Next we will discuss how quartile is computed in case of continuous series. तो पहले देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में। दूसरा देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल इन डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। How quartile is computed in individual observation, discrete series and continuous series. तो फास्ट शुरू करेंगे किससे? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। राइट डाउन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। बेटा यहां पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में कैसे क्वार्टाइल निकालते हैं? मीडियन में सिर्फ एक ही मीडियन होता है, लेकिन क्वार्टाइल्स में तीन क्वार्टाइल है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो तीन क्वार्टाइल के लिए तीन फॉर्मूला है। हाउ टू कंप्यूट Q1 एक फॉर्मूला है, हाउ टू कंप्यूट Q2 एक फॉर्मूला है, हाउ टू कंप्यूट Q3 एक फॉर्मूला है। तो अभी देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल। फर्स्ट Q1 इंडिविजुअल सीरीज में Q1 इज इक्वल टू, बेटा मीडियन का क्या फॉर्मूला था? n+1/2, यहां पर हो जाएगा n+1/4 आइटम। तो यहां पर होगा n+1/4 आइटम, बिकॉज इट डिवाइड्स द एंटायर सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो Q1 का फॉर्मूला हो गया n+1/4 आइटम। अभी Q2, बेटा Q1 के फॉर्मूला में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा Q2 का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 2 होल इनटू n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। बेटा Q2 का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अभी हम पढ़ेंगे किसका फॉर्मूला? Q3 का फॉर्मूला। व्हाट इज Q3 का फॉर्मूला? अच्छा, Q1 के फॉर्मूला में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा Q3 का फॉर्मूला 3 होल इनटू n+1 divided by 4th item. So these are certain formulas for computation of different quartiles. Q1, Q2, Q3 निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट सीरीज का दिया हुआ है। Q1 का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? Q1 इज इक्वल टू n+1/4 आइटम। Q2 का फॉर्मूला दैट इज 2 होल इनटू n+1/4 आइटम। Q3 का फॉर्मूला 3 होल इनटू n+1/4 आइटम। अभी एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, हाउ टू कंप्यूट क्वार्टाइल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। लिखो एग्जांपल 1। लिखो कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 from the following. बेटा x का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में। व्हाट इज x? x मींस वेरिएबल। वेरिएबल इंडिविजुअली दिया हुआ है। सपोज इंडिविजुअली दिया हुआ है वेरिएबल 8, 10, 12, 3, 5, 6, 11. So this is the figure given. So now we have to calculate the Q1, Q2, Q3. बेटा मैं बताया था ये Q1, Q2, Q3 या मीडियन ये सब पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज में हम किसी भी चीज को निकालने से पहले डाटा को अरेंज करते हैं। बेटा यहाँ पर अरेंज है कि है क्या? छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में है क्या? नहीं है। तो पहले हमको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन शुरू करो, पहले अरेंज करो डाटा को। तो लिखेंगे फर्स्ट अरेंज्ड एक्स। तो लिखो अरेंज्ड एक्स, एक्स को पहले अरेंज करो। अरेंज्ड एक्स। बेटा सबसे छोटा कौन सा है? बेटा सबसे छोटा है 3, तो 3 चला गया यहां से।
नेक्स्ट उससे ऊपर थोड़ा कौन है, उससे ऊपर है 5, तो 5 चला गया। नेक्स्ट उससे ऊपर कौन है, उससे ऊपर है 6, 6 चला गया। नेक्स्ट उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, उससे थोड़ा बड़ा है 8, तो 8 चला जाएगा। नेक्स्ट उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, उससे थोड़ा बड़ा है 10, तो 10 गया। नेक्स्ट उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, उससे थोड़ा बड़ा है कितना है 11, 11 गया। नेक्स्ट उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है 12, 12 चला गया। सो अभी हम इसको भूल जाएंगे, किसको भूल जाएंगे, ये एक्स को भूल जाएंगे। हमारा ये एक्स कोई काम का नहीं है, हमारा पूरा काम किसके ऊपर, अरेंज्ड एक्स के ऊपर है, क्योंकि एक्स को अरेंज कर दिए। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डाटा अरेंज हो गया। तो अरेंज्ड एक्स हमारा काम का है, इसी से हम सब कुछ निकालेंगे। तो यहाँ पर एन कितना है, तो हियर एन इज इक्वल टू 7 गिन लिए। तो अभी एक एक चीज निकालेंगे, Q1 निकालेंगे, Q1 का वैल्यू निकालेंगे। तो Q1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज Q1, Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाई 4th आइटम। तो n प्लस 1 बाई 4th आइटम दैट इज इक्वल टू n कितना है, n है 7, 7 प्लस 1 बाई 4, 4th आइटम। 7 प्लस 1 8 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2th आइटम। इसका मतलब 2 नंबर वाला आइटम क्या है, क्या है, Q1 है। 2 नंबर वाला आइटम कौन सा है, तो ये 1 नंबर में बैठा हुआ है, ये 2 नंबर में बैठा हुआ है। गिन लो, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 नंबर वाला आइटम जो है ये Q1 है। तो Q1 का वैल्यू निकल गया तुम्हारा कितना, 5। तो अभी लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू कितना, 2 नंबर में कौन बैठा हुआ है, 5। बेटा Q1 हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे Q2, नेक्स्ट हम निकालेंगे Q3, तो निकालेंगे Q2, Q1 आ गया, फिर लिखेंगे Q2। Q2 का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो Q2 का फॉर्मूला क्या है, Q2 बोल रहा है 2 होल इंटू n प्लस 1 बाई 4th आइटम। दैट इज इक्वल टू 2 होल इंटू n प्लस 1 कितना है बेटा, n प्लस 1 है 7 प्लस 1 बाई 4th आइटम। दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी आइटम, ये हो गया 7 प्लस 1 8, 8 इंटू 2 16, 16 बाई 4 4, दैट इज इक्वल टू 4th आइटम। 4 नंबर वाला आइटम क्या है, Q2 है। देयरफॉर Q2 का वैल्यू कितना है, 4 नंबर वाला आइटम, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 नंबर में जो बैठा हुआ है वो हो गया Q2। तो Q2 इज इक्वल टू, तो लिखेंगे देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू, Q2 का वैल्यू निकालो, Q2 का इज इक्वल टू कितना आया वैल्यू, 8। अभी हम निकालेंगे किसका, Q3, 3 है, ठीक है। तो अभी लिखेंगे Q3, Q3 क्या है, Q3 देखो, Q3 इजिकल टू, फॉर्मूला डालो, Q3 क्या है, Q3 इजिकल टू फॉर्मूला है 3 होल इंटू n प्लस 1 बाई 4th आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू n कितना है 7 प्लस 1 बाई 4। बेटा 7 प्लस 1 8, 8 बाई 4 2, 3 इंटू 2 6, दैट इज इक्वल टू 6th आइटम। तो 6 नंबर वाला क्या है, Q3 है। तो गिनेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6 नंबर में कौन बैठा हुआ है, 11। सो दिस इज Q3। सो लिखेंगे देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू कितना, 11। तो हमको Q1 का वैल्यू मिल गया, Q2 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू कितना आया, 5 आया। Q2 का वैल्यू मिल गया, Q2 का वैल्यू कितना आया, 8 आया। नेक्स्ट Q3 का वैल्यू मिल गया, Q3 का वैल्यू कितना आया, 11 आया। सो दिस इज आवर आंसर। Q1 का वैल्यू निकला, Q2 का वैल्यू निकला, Q3 का वैल्यू निकल गया। बेटा समझ में आ रहा है क्या, तो इंडिविजुअल सीरीज में Q1 का निकालने का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाई 4th आइटम। Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 होल इंटू n प्लस 1 बाई 4th आइटम। Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3 होल इंटू n प्लस 1 बाई 4th आइटम। अभी इसके ऊपर और एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 2 लिखेंगे।
बेटा एग्जाम्पल 2 लिखो, एग्जाम्पल 2। लिखो कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 from the following data। कुछ डाटा दिया हुआ है, उससे हमको क्या निकालना है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। तो व्हाट इज द डाटा गिवन? सपोज x वैल्यू इज गिवन। व्हाट इज x वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? सपोज x वैल्यू दिया हुआ है, अब देखिए 7, 8, 3, 5, 15, 18। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ इसमें से Q1, Q2, Q3 निकालना है। बेटा मैं बताया था पोजिशनल एवरेज निकालने से पहले इसको अरेंज करना पड़ता है, तो पहले लिखेंगे अरेंज्ड x। तो अरेंज्ड x सॉल्यूशन में, तो पहले सॉल्यूशन में पहले अरेंज करेंगे x को। सॉल्यूशन इसका अरेंज्ड एक्स को अरेंज करेंगे। बेटा अरेंज करने से क्या आएगा? सबसे कम क्या है? सबसे कम सा 3 है, चला गया। उससे थोड़ा ज्यादा कौन सा है? उससे थोड़ा ज्यादा 5 है, चला गया। नेक्स्ट उससे थोड़ा ज्यादा कौन सा है? उससे थोड़ा ज्यादा 7 है, चला गया। नेक्स्ट उससे थोड़ा ज्यादा कौन सा है? 8 है, चला गया। नेक्स्ट उससे थोड़ा ज्यादा कौन सा है? 15 है सर, गया। नेक्स्ट उससे थोड़ा ज्यादा कौन सा है? 18 है सर, चला। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। अभी ये जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन का कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि हम उसको अरेंज कर दिए। पोजिशनल एवरेज निकालने के टाइम में हमको डाटा को पहले अरेंज करना पड़ता है। हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो सारा कैलकुलेशन अरेंज्ड एक्स को देखकर करेंगे। तो अभी देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट क्या है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज में? Q1 का। तो Q1 इज इक्वल टू, बेटा Q1 का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज में? Q1 का फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4th आइटम, दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज में Q1 का आइटम n कितना है? 6 प्लस 1 बाई 4। बेटा 6 प्लस 1 बाई 4th आइटम, दैट इज इक्वल टू 7 by 4, that is equal to 1.75 आइटम। बेटा 1.75 नहीं है, 1.75 आइटम। तो 1.75 आइटम किसके बारे में बीच में आता है? बेटा 1.75 हमेशा आता है 1 और 2 के बीच में। तो वैल्यू आएगा फर्स्ट आइटम और सेकेंड आइटम के बीच में 1.75 आता है। बेटा फर्स्ट आइटम कितना है? फर्स्ट आइटम देखो 3 है, तो फर्स्ट आइटम 3 है और सेकेंड आइटम कितना है? 5 है। तो 3 और 5 के बीच में एक वैल्यू है 1.75 आइटम, तो ये है 1.75 आइटम। इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। दैट वैल्यू विल बी आवर Q1 वैल्यू। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो हम निकाल रहे हैं किसका वैल्यू? Q1 का। तो Q1 का वैल्यू क्या है? मैं बताया था Q1 का फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। तो Q1 वैल्यू क्वार्टाइल 1, Q1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अभी देखेंगे 1.75 वैल्यू आइटम कैसे निकलता है। 1.75 कैसे निकलता है? तो लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू फर्स्ट आइटम प्लस 1.75, 1 से कितना ज्यादा है? पॉइंट के बाद कितना है? 0.75, तो लिखेंगे 0.75 होल इनटू, ये किस किस के बीच में है? ये सेकेंड और फर्स्ट के बीच में है, इन दोनों का गैप, होल इनटू सेकेंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम।
बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे Q1 का, तो Q1 कितना आएगा? Q1 इज इक्वल टू, निकालो फर्स्ट आइटम, व्हाट इज फर्स्ट आइटम? फर्स्ट आइटम कितना है? 3 प्लस 0.75, क्योंकि 1.75 पे फर्स्ट आइटम तो चला गया, अभी 0.75 निकालेंगे, तो 0.75 होल इनटू सेकेंड आइटम, व्हाट इज सेकेंड आइटम? बेटा सेकेंड आइटम कितना है? 5 है, माइनस कौन सा? फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम कितना है? फर्स्ट आइटम तो 3 है, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0.75 होल इनटू 2। बेटा 0.75 into 2 is equal to 1.5, that is equal to 3 plus 1.5, that is equal to 4.5। तो आपका Q1 आ गया 4.5। बेटा Q1 4.5 किसको समझ में नहीं आया? मैं और एक बार बोलता हूं Q1 का कैलकुलेशन कैसे हुआ। बेटा हम बात किए थे Q1 इजिकल टू n प्लस 1/4 आइटम, n यहाँ पर 6 है, तो 6 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 7/4, दैट इज 1.75 आइटम। हमको पता है 1.75 1 और 2 के बीच में आता है, दैट मीन्स फर्स्ट आइटम का और सेकेंड आइटम के बीच में है 1.75। तो फर्स्ट आइटम में कितना है? फर्स्ट आइटम में देखो यहाँ पर सीरीज में 3 है, सेकेंड आइटम में कितना है? 5 है, तो 3 और 5 के बीच में कोई वैल्यू है, दैट इज वो कौन सा वैल्यू है? फॉर्मूला है। तो फर्स्ट Q1 इज इक्वल टू 1.75 आइटम, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट आइटम प्लस कितना ज्यादा है? 0.75, 0.75 होल इनटू गैप बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट आइटम। सो फर्स्ट आइटम में वैल्यू कितना रहा? 3 प्लस 0.75, और सेकेंड और फर्स्ट आइटम में गैप है, फर्स्ट सेकेंड आइटम में 5 और ये फर्स्ट आइटम में 3, 5 और 3 का गैप दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0.75 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 4.5। बेटा ये समझ में आ गया Q1 कैसे निकालते हैं? अगर ये समझ में आ गया तो आपको Q2 और Q3 निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी Q2 निकालते हैं, फिर Q3 निकालते हैं। तो पहले ये जो अरेंज्ड एक्स को मैं बोर्ड में लिख देता हूं और एक बार, फिर मैं इसको क्या करूंगा? Q2 निकालूंगा और Q3 निकालूंगा, ठीक है? वन सेकेंड। हाँ बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Q1 तो निकाल चुके हैं, अभी हमको निकालना है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में है अरेंज्ड एक्स, व्हाट इज आवर अरेंज्ड एक्स? ये क्वेश्चन और एक बार लिख दिया। अरेंज्ड एक्स में क्या क्या है? अरेंज्ड एक्स में आपका दिया हुआ है 3, और एक है 5, और एक है 7, और एक है 8, और एक है 15, और एक है 18, और x कितना है? n कितना है? n इज इक्वल टू 6, दिस इज द वैल्यू। ओके, नाउ वी हैव टू डू सेकेंड Q2 निकालेंगे, Q2 का कैलकुलेशन करेंगे। बेटा Q2 का फॉर्मूला क्या है? 2 होल इनटू n प्लस 1 बाई फोर्थ आइटम, दैट इज इक्वल टू 2 होल इनटू n कितना है? 6 प्लस 1 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 7 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 3.5 आइटम। बेटा 3.5 कैसे निकलता है? हमको पता है 3.5 कैसे निकलता है। 3.5 होगा दो आइटम के बीच में, कौन कौन सा आइटम होगा? एक आइटम होगा थर्ड आइटम और एक आइटम होगा फोर्थ आइटम। तो ये थर्ड और फोर्थ के बीच में होगा 3.5 आइटम। बेटा थर्ड आइटम कितना है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड आइटम का वैल्यू है 7, और फोर्थ आइटम कितना है? फोर्थ आइटम का वैल्यू है 8। तो 3.5 7 और 8 के बीच में आएगा, तो निकालेंगे Q2 का वैल्यू जिस तरह से लिखे थे। Q2 इजिकल टू कितना होगा यहाँ पर? थर्ड आइटम प्लस
बेटा पॉइंट के बाद में कितना है 0.5 है, 3.5 थर्ड आइटम हो गया प्लस 0.5 होल इनटू गैप बिटवीन फोर्थ आइटम एंड थर्ड आइटम, गैप बिटवीन मतलब फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो देखेंगे थर्ड आइटम कितना है बेटा, थर्ड आइटम गिन कर जाओ, थर्ड आइटम कितना है, थर्ड आइटम का वैल्यू तो यहाँ पर लिखें 7 प्लस 0.5 होल इनटू फोर्थ आइटम कितना है 8 माइनस थर्ड आइटम कितना है 7, that is equal to 7 plus 0.5 into 1, that is equal to 7 plus 0.5, that is equal to 7.5, that is equal to Q2। बेटा Q2 का वैल्यू आ गया कितना 7.5। समझ में आ रहा है? अगर Q2 समझ में आ गया तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, किसका कैलकुलेशन करेंगे, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे Q3 का। बेटा Q3 का वैल्यू पहले निकालते हैं, व्हाट इज Q3, तो Q3 कैसे निकलेगा, Q3 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डालते हैं 3 होल इनटू n प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 होल इनटू n कितना है, n है 6 प्लस 1 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 7 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 21 बाई 4, 21 बाई 4 5.25 आइटम। बेटा ये है Q3 है 5.25 आइटम, हमको पता है 5.25 कैसे मिलेगा, 5.25 दो आइटम के बीच में मिलेगा, पहला आइटम होगा फिफ्थ आइटम, दूसरा आइटम होगा सिक्स्थ आइटम, इन दोनों के बीच में हमको 5.25 मिलेगा, 5.25। बेटा फिफ्थ आइटम कितना है, फिफ्थ आइटम ढूंढेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ आइटम है आपका 15, और सिक्स्थ आइटम कितना है, सिक्स्थ आइटम है हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 18। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट Q3, Q3 का वैल्यू कितना होगा, Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, फिफ्थ आइटम प्लस कितना ज्यादा है 0.25, 0.25 होल इनटू गैप बिटवीन फिफ्थ आइटम एंड सिक्स्थ आइटम, तो सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, फिफ्थ आइटम बेटा कितना है, फिफ्थ आइटम ढूंढेंगे, फिफ्थ आइटम तो 15 है, प्लस 0.25 होल इनटू कितना, सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम तो 18 है, माइनस फिफ्थ आइटम, फिफ्थ आइटम 15 है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 0.25 इंटू 3, 0.75 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 0.75, दैट इज इक्वल टू 15.75। आपका आंसर आया किसका, Q3 का। आपको तीनों आंसर मिल गया, Q1 का वैल्यू मिल गया, Q2 का वैल्यू मिल गया, Q3 का वैल्यू मिल गया, दिस इज Q1 Q3। तो Q3 का आंसर 15.75 है। बेटा समझ में आ गया, Q1 का आंसर आया था कितना 4.5, Q2 का आंसर आया कितना आपका, Q2 का आंसर आया 7.5, Q3 का वैल्यू 15.75 आपका आंसर आ गया। So this is how we calculate median in case of individual series. इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालते हैं और क्वार्टाइल निकालते हैं, तीन क्वार्टाइल निकालते हैं, तीन क्वार्टाइल है Q1 Q2 Q3। Q1 का फॉर्मूला है n+1 बाई फोर्थ आइटम, Q2 का फॉर्मूला है n+1 2 होल इंटू n+1 बाई फोर्थ आइटम, Q3 का फॉर्मूला है 3 होल इंटू n+1 बाई फोर्थ आइटम। हमें क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कैसे क्वार्टाइल्स निकालते हैं, ठीक है, 1 मिनट। तो हेडिंग करूं, कंप्यूटेशन ऑफ
हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स इन डिस्क्रेट सीरीज। डिस्क्रेट सीरीज में कैसे क्वार्टाइल निकालेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल इन डिस्क्रेट सीरीज। डिस्क्रेट सीरीज में बेटा क्या देता है, हमको पता है एक्स विल बी गिवन एंड एफ विल बी गिवन। हमें क्लियर, एक्स देगा और एफ देगा, तो हम इसमें कैसे क्वार्टाइल निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट, स्टेप 1 और स्टेप ए। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सी एफ। बेटा व्हाट इज सी एफ। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमको तो पता है हमेशा इसमें अरेंज करते हैं डाटा को, पहले तो अरेंज डाटा, क्योंकि जितना भी पोजिशनल एवरेज होगा हमको डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ता है। तो पहले कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलेंगे सी एफ। स्टेप ए गया। नेक्स्ट होगा स्टेप बी। स्टेप बी में क्या करेंगे, यूज फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई क्वार्टाइल पोजीशंस। बेटा फॉर्मूला यूज करके क्वार्टाइल पोजीशंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, जो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है वही डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, Q1 का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वही रहेगा। Q1 इजिकल टू, फॉर्मूला पढ़े थे सर n+1/4 आइटम, हो गया, वही रहेगा। फिर Q2 का फॉर्मूला सर क्या पढ़े थे, वही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 होल इंटू n+1/4 आइटम। Q3 का फॉर्मूला क्या था, वही पढ़े थे, 3 मल्टीप्लाई हो गया 3 होल इंटू n+1/4 आइटम। बेटा स्टेप 2 समझ में आ गया। दो स्टेप गया, पहला स्टेप सीएफ निकालेंगे, दूसरा स्टेप क्वार्टाइल का पोजीशंस निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 और स्टेप सी, आइडेंटिफाई क्वार्टाइल्स by first referring in CF, then in corresponding X वैल्यू। पहले लिखो, एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है। तो हमको क्वार्टाइल को फास्ट ढूंढना है। कहां पर ढूंढना है, पहले ढूंढेंगे सीएफ में, फिर ढूंढेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू में। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे एग्जाम्पल 1। लिखो कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 from the following। बेटा x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। क्वेश्चन में x वैल्यू इज गिवन, f वैल्यू इज गिवन। व्हाट इज x वैल्यू, व्हाट इज f वैल्यू। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। x है 10, 20, 30, 40। थोड़ा इसको ऊपर उठा देता हूं।
40, फिर दिया हुआ है 50, फिर दिया हुआ है 60, फिर दिया हुआ है 70। These are the values. Okay, so f दिया हुआ है. What is f? f वैल्यू क्या दिया हुआ है? f वैल्यू दिया हुआ है 3, 10 का 3, फिर 20 का दिया हुआ है 5, 30 का दिया हुआ है 8, 40 का दिया हुआ है 4, 50 का दिया हुआ है 7, 60 का दिया हुआ है 8 और 70 का दिया हुआ है 4। बेटा कैन यू कैलकुलेट n नाउ? n इज द समेशन ऑफ f, n इज इक्वल टू cf। मिला दो, कितना होता है? 3 5 8 8 8 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 8 35, 35 4 39, n है 39। अभी एक एक स्टेप पढ़ेंगे और वो स्टेप को करेंगे। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन ये दिया हुआ है Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। पहला स्टेप क्या करेंगे? CF निकालो। क्या निकालो? CF निकालो। तो इसका CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे? फर्स्ट स्टेप ये कैलकुलेट CF और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 3। सेकेंड का कितना होगा? 3 + 5 8। थर्ड का कितना होगा? 8 + 8 16। तो नेक्स्ट होगा 16 + 4 20। नेक्स्ट होगा 20 + 7 27। नेक्स्ट होगा 27 + 8 35। नेक्स्ट होगा 35 + 4 39। These are the values CF. Now we can easily find out Q1, Q2, Q3. पहले Q1 निकालेंगे, फिर Q2 निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे। अभी देखेंगे Q1। पहले निकालेंगे Q1। Q1 क्या है? फॉर्मूला पढ़ेंगे। Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n + 1/4 आइटम। n + 1/4 आइटम। बेटा n कितना है? n है 30, समेशन f 39। तो n इज इक्वल टू 39। तो 39 + 1/4 आइटम। बेटा 39 + 1/4, 39 + 1 कितना आता है? 40। 40/4, 40/4 कितना आता है? 40/4 आपका आ जाएगा 10th आइटम। बेटा 10 नंबर वाला आइटम Q1 है। तो 10 नंबर वाला आइटम कहां पर है ढूंढेंगे? CF में। 8 3 में 10 है क्या? नहीं। 8 में 10 है क्या? नहीं। 16 में 10 है। तो 16 के सामने पहले CF में ढूंढे, फिर 16 से जाएंगे सामने। कहां पर जाएंगे? X में 16 किसका है? सब 30 का है। तो 30 का CF 16 है, तो ये विल बी Q1। तो क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाई क्वार्टाइल फर्स्ट बाय रेफरिंग CF। पहले CF में ढूंढो वो आइटम कहां पर है, तो देन कॉरेस्पॉन्डिंग X वैल्यू। कॉरेस्पॉन्डिंग X वैल्यू कितना है? 30। तो Q1 इज इक्वल टू 30। बेटा फर्स्ट निकल गया। Q1 क्या है? Q1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या है? Q2 क्या है? Q2 क्या है? निकालो। Q2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे। क्या फॉर्मूला है? ओनली 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 होल इंटू n + 1/4 आइटम। इसका मतलब 2 होल इंटू 39 + 1/4। बेटा ये 39 + 1/4 तो 10 था। 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 20, 20th आइटम। तो 20 नंबर वाला आइटम Q2 है। तो देखेंगे पहले CF में 3 में 20 है क्या? नहीं। 8 में 20 है क्या? नहीं। 16 में 20 है क्या? नहीं। अच्छा 20 में तो 20 है। अगर 20 में 20 है तो ये 20 के सामने में जो आइटम रहेगा वो आइटम हो जाएगा Q2। तो Q2 का वैल्यू निकल गया मेरा। Q2 का वैल्यू कितना है? 20 के सामने में जो है, बेटा 20 के सामने में कौन है? 40 है। तो ये हो गया Q2। तो Q2 इज इक्वल टू कितना आया वैल्यू? Q2 इज इक्वल टू 40। Q2 का वैल्यू निकल गया। अभी हम निकालेंगे किसका वैल्यू? Q3 का वैल्यू। बेटा Q3 कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला डालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? Q3 इज इक्वल टू डालेंगे। Q3 क्या है?
Q3 इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर उठा देता हूं, Q3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू 3 होल इंटू n+1 बाई फोर्थ आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू n कितना है 39 प्लस 1 बाई फोर्थ, ये 39 प्लस 1 बाई फोर्थ तो 10 था, 10 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 38th आइटम। 30 नंबर वाला आइटम Q3 है, तो 30 नंबर वाला आइटम कहाँ है, पहले CF में ढूंढेंगे, फिर जाकर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग X देखेंगे, वो हो जाएगा आपका Q3। 3 में है क्या 30, नहीं। 8 में है क्या, नहीं। 16 में है क्या, नहीं। 20 में है क्या, नहीं। 27 में है क्या, नहीं। 35 में है, अगर 35 में है तो 35 के सामने जाएंगे, 35 के सामने जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा आपका Q3। बेटा 35 के सामने 60 लिखा हुआ है, सो दिस विल बी आवर Q3। बेटा Q1 का वैल्यू मिल गया, Q2 का वैल्यू मिल गया और Q3 का वैल्यू आ गया, सो Q3 इज इक्वल टू हाउ मच 60। सो दिस इज आवर आंसर, Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, Q3 का वैल्यू। तो कौन सा सीरीज पढ़े अभी, अभी पढ़े डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स देता है, एफ देता है, तो पहले 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप एक्स और एफ को लिख देंगे, फिर सी एफ निकालेंगे। व्हाट इज सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। फिर Q1 का फॉर्मूला डालेंगे, Q1 का फॉर्मूला है n+1 बाई फोर्थ आइटम, जितना आया उसको पहले CF में ढूंढेंगे, फिर CF में से सामने जो X में लिखा हुआ है वही हो जाएगा Q1 का वैल्यू। उसी तरह से Q2 का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 होल इंटू n+1 बाई फोर्थ आइटम, फिर पहले आइटम का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके सामने CF में ढूंढेंगे, फिर उसके सामने जो X में लिखा हुआ है वही वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली Q3 का फॉर्मूला डालेंगे, 3 होल इंटू n+1 बाई फोर्थ आइटम, फिर जो वैल्यू आएगा पहले CF में ढूंढेंगे, फिर उसके सामने जो आइटम X में लिखा होगा वही हो जाएगा Q3। इन दिस वे वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट what is quartiles in case of individual series. Then we have discussed how to learn quartile in case of discrete series. इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे क्वार्टाइल निकालते हैं हम लोग अभी पढ़े हुए हैं। ओके, अगर तो आज हम पढ़े क्या, आज का एक समरी लिखते हैं, पहले समरी समझते हैं। आज का समरी क्या है, व्हाट इज क्वार्टाइल में पढ़ाया। क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल एक ऐसा चीज है जो डिवाइड करता है सीरीज को कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। तो लिखेंगे व्हाट इज आवर समरी, समरी है फर्स्ट क्वार्टाइल divides the entire series into how many parts, into 4 equal parts। क्वार्टाइल कितना होता है सर, क्वार्टाइल 3 होता है, तो देयर आर हाउ मेनी क्वार्टाइल्स, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। व्हाट आर द 3 क्वार्टाइल्स, क्या क्या है क्वार्टाइल्स 3, एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3। मैं बताया था Q1 जो Q2 जो है मीडियन वही है, तो थर्ड पॉइंट पढ़े Q2 इज इक्वल टू मीडियन। नेक्स्ट हम डिस्कस किए हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन डिफरेंट सीरीज। कौन कौन सा सीरीज पढ़े सर, पहले सर पढ़े इंडिविजुअल सीरीज, फिर पढ़े कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे क्या निकालते हैं, क्वार्टाइल निकालते हैं, वो सब आज पढ़े। सिर्फ एक चीज बच गया है, उसको नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे, हाउ टू कंप्यूट क्वार्टाइल इन केस ऑफ व्हिच सीरीज, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कल के क्लास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे क्वार्टाइल निकालते हैं उसको पढ़ेंगे। और
क्लास खत्म होने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. माय चैनल इज, व्हाट इज द नेम ऑफ माय चैनल? माय चैनल्स नेम इज Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe this channel, kindly press the bell icon so that you can get the latest videos as and when I upload it in YouTube. And if you have still any doubt, you can contact me in my email. My email is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. With this, I conclude my lecture today. Okay. Thank you. Thank you for watching my video. Have a nice day. Thank you.